السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ تجوید کے سبق کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ہم نے وقف، سکتہ، تفخیم اور ترقیق تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر عرض کر دوں، جو ہم نے کل پڑھا تھا اس میں ضروری چیزیں جو تھیں، لحن جلی اور لحن خفی، 4 قسم کی غلطیاں لحن جلی میں بتایا تھا شمار ہوں گی۔ تبدیل حرف بحرف، کسی حرف کو زائد کر دینا، اور وہ حرکات زبر زیر پیش کو ان کی لمبائی سے زیادہ اگر کھینچیں گے تو حروف پیدا ہو جائیں گے، اور کسی حرف کو کم کر دینا یہ بھی لحن جلی میں ہے۔ اگر حروف مدہ کی مقدار کو پورا ادا نہیں کریں گے تو حرف کم ہو جائے گا۔ چوتھی غلطی تھی حرکات و سکنات میں تبدیلی کرنا۔ لحن خفی، چھوٹی غلطیاں جو حروف کے حسن و زینت کے ساتھ، تلفظ نہیں بلکہ حسن و زینت کے ساتھ جو قواعد تعلق رکھتے ہیں ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ آگے جا کر اس کی تشریح ہوگی، یہ تو اصطلاحات ہیں، آغاز میں تھوڑی بہت تشریح کر رہا ہوں تاکہ آگے جا کر ہمیں آسانی ہو۔ تو تحسین حروف کو خوبصورت بنانے کے جو قواعد ہیں ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ تو وہ اگر ادا نہ ہوں تو لحن خفی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وقف۔ وقف کہتے ہیں کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر سانس کو توڑ کر ٹھہریں گے، متحرک کو ساکن، 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدلیں گے۔ اور آگے ہے سکتہ۔ سکتہ اور وقف میں فرق اتنا ہے کہ ان کے سارے قوانین ایک جیسے ہیں۔ وقف میں آواز ٹوٹ جاتی ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، آواز بھی ٹوٹتی ہے، سانس بھی ٹوٹتا ہے، اور سکتے میں آواز تو ٹوٹتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتی۔ اس کے آگے بتایا تھا تفخیم، وہ حروف جو پر پڑے جاتے ہیں، جو مفخم ہیں، جن میں تفخیم لازمی ہے، 29 حروف میں سے ان میں 7 حروف ایسے ہیں، حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، تو ان کو پر پڑھنا ضروری ہے، اور ان کا مجموعہ میں نے عرض کیا تھا خص ضغط۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ مرقق ہیں، ان میں صفت ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی ان کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ کل تک ہم نے عرض کیا تھا۔ آج ہم آگے چلتے ہیں مد۔ مد کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے درازی چاہنا، لمبا کرنا۔ اور یاد رکھیے 90% جو غلطیاں ہیں وہ اسی آوازوں کی لمبائی اور آوازوں کو لمبا نہ کرنا، آوازوں کو یا آوازوں کو کی جو سمت ہے ان کو تبدیل کرنا، یہ اسی کے اوپر منحصر ہوتا ہے، آوازوں کے اوپر۔ میں نے مد کی تشریح سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور 7 آوازیں 3 حرفوں سے نکلتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو نقشہ دیا ہوا ہے۔ ابھی میں اس نقشے کو
आपके सामने लाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों की तादाद 7 है, ये ज़हन में रखें। 8वीं आवाज़ कोई नहीं, यानी जितनी आवाज़ें हैं वो छोटी हैं, बड़ी हैं, बामाना हैं, बेमाना हैं, मुहमल हैं, गैर मुहमल हैं, वो यही 7 आवाज़ें हैं। अगर कोई गूंगा बहरा बोलेगा तो इन्हीं आवाज़ों के अंदर वो आवाज़ होगी। तो वो आवाज़ें जो 7 हैं उनमें से 5 आवाज़ें कुरान करीम में इस्तेमाल होती हैं। क़िरात इमाम हफ्स में, रवायत इमाम हफ्स और क़िरात इमाम आसिम में इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों की तादाद 5 है। ये आप याद रखें, अभी इसकी तफसील बताएंगे। और ये जितनी आवाज़ें हैं ये अलिफ वाओ या से बनती हैं। मैंने आपको अभी हमने देखा मद का माना है दराजी चाहना, और अलिफ वाओ या 3 हरूफ ऐसे हैं जिनसे आवाज़ बनती भी है, आवाज़ लंबी भी होती है, आवाज़ छोटी भी है। अब 3 चीज़ें आपने देखनी है यहाँ पर। एक आवाज़ इन 3 हरफों से बनती है, और इन्हीं 3 हरफों से आवाज़ छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। पहले तो हम ये समझेंगे कि वो जो 3 हरूफ की 7 आवाज़ें जो बनती हैं उनकी तफसील क्या है। ये देखिए आपके सामने पहली आवाज़ है अलिफ मद्दा की मुकम्मल आवाज़। अलिफ मद्दा की मुकम्मल आवाज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की हर ज़बान में जो अल्फ़ाबेट हैं उनके अंदर यही आवाज़ें हैं। अब देखिए अलिफ मद्दा की मुकम्मल आवाज़, अर्रहमान में जो अलिफ है ये है वो आवाज़। आप देखें इसकी लंबाई है, हम इसको मुकम्मल आवाज़ भी कह सकते हैं। मुकम्मल इसलिए कहते हैं कि ये तभी आवाज़ है। दुनिया के अंदर जितने भी हरूफ हिजा हैं, वो अरबी हूँ, उर्दू हूँ, फारसी हूँ, इंग्लिश हूँ, उनकी लंबाई एक जैसी है। मसलन ए बी सी डी ई, इसी तरह बा अरबी आवाज़, बा ता था, उर्दू में बे पे ते। कभी किसी ने ए को ए या ए नहीं कहा, वो यही कहेंगे ए। बी को बी, इससे ज्यादा ये। इसी तरह बा ता, उर्दू में बे पे ते। तो आप देखें ये इसकी तभी आवाज़ है। इनको अहले मुजव्वद जो हैं वो मद्दे असली कहते हैं, और इसके नापने का जो मापने का पैमाना है उसका नाम रखते हैं, उसका नाम है अलिफ। यानी अब हम ये नहीं कहेंगे मुकम्मल आवाज़ या तभी आवाज़, हम 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या मद्दे असली कह लेंगे या एक अलिफ की मिकदार कह लेंगे। अब देखिए बा ता सा जा हा खा, ये है पहली आवाज़ अलिफ मद्दा की मुकम्मल आवाज़। अब हम इसको कहेंगे अलिफ मद्दा, और इसकी आपने ज़रा इसके तलफ़्फ़ुज़ में गौर करें। बा अलिफ उस वक्त अलिफ है जब ये खाली हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। अलिफ मा कबल मफ्तू, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ मुतहर्रिक नहीं होता। जब मुतहर्रिक होगा तो वो अलिफ नहीं होगा, वो हमजा होगा। इसलिए आप ये समझें कि ज़बर ज़ेर पेश वाला अलिफ या साकिन झटके वाला अलिफ, वो अलिफ नहीं होता बल्कि वो हमजा होता है। और अलिफ और हमजा में फ़र्क ये है कि अलिफ हमेशा खाली, उसके बिफोर उसके माक़बल ज़बर होता है, और ये हमेशा खाली होता है। और ज़बर ज़ेर पेश वाला या साकिन झटके वाला ये अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। दूसरी बात ये याद रखिए, अलिफ कभी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता,
اس لیے کہ जब वो शुरू में आएगा तो वो तकाजा करेगा हरकत का, और जब उसके ऊपर हरकत आएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमजा बन जाएगा। ये दरमियान में आता है या आखिर में, अलिफ या दरमियान में आता है या आखिर में आता है, खाली होता है, पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होता है। ये हो गई नंबर 1 आवाज। नंबर 2 आवाज है, उसका नाम है वाओ मद्दा। वाओ मद्दा की मुकम्मल आवाज, इसका एक नाम और भी है, वाओ मद्दा की मारूफ आवाज। अभी आपको मैं बताऊंगा, मारूफ के मुकाबले में लीन भी है, मारूफ के मुकाबले में मजहूल भी है। ये 3 आवाजें हैं जो वाओ से निकलती हैं। तो वाओ मद्दा की मुकम्मल आवाज या वाओ मद्दा को वाओ मारूफ कहेंगे। युमिनून में जो पहली वाओ है वो नहीं, जो मुमिनून, जो नून की आवाज है, युमिनून में नून वाओ नून में जो वाओ है ये मुकम्मल आवाज है। वाओ साकिन से पहले जब जम्मा होगा, पेश होगा, तो वाओ मद्दा होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया है, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा है, वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा है। अच्छा, अलिफ खाली होगा तो उससे पहले जबर, लेकिन वाओ के ऊपर जज्म होगी, वाओ के ऊपर जज्म और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर पेश, तो ये वाओ मद्दा, और इसका नाम है मद्दे असली या मुकम्मल आवाज, या 1 अलिफ की मिकदार में इसकी लंबाई है। नंबर 3 आवाज है वाओ लीन की मुकम्मल आवाज। वाओ लीन, लीन कहते हैं नरमी को, हम उर्दू में कहेंगे वाओ नरम की मुकम्मल आवाज। अरबी में इसको बोलते हैं वाओ लीन। नरम इसको इसलिए बोलते हैं कि मद्दा की अदायगी में आप आवाज को सख्ती के साथ भी अगर खींचें तो वो आवाज चलेगी, बंद नहीं होगी। मसलन युमिनून, जितना मर्जी इसको टाइट होंठों को सख्त करके निकालें, ये आवाज बंद नहीं होगी। जबकि वाओ लीन की आवाज को अगर आप टाइट करेंगे तो बंद हो जाए, जैसे खौफ, खौफ, ये इसको नरम रखकर पढ़ना पड़ेगा। खौफ, होंठों को नरम रखकर, जबान को नरम रखकर हम निकालेंगे खौफ। इसका नाम है वाओ नरम या वाओ लीन, और इसका तलफ़्फ़ुज़ है वाओ साकिन से पहले जबर हो। अगर पेश होगी वाओ साकिन से पहले तो मद्दा बन जाएगी, और वाओ साकिन से पहले जेर नहीं आती। अगर जेर आएगी तो सरफी हजरात उस वाओ को बदल देंगे, तालील कर देंगे, या वाओ से पहले ज़म्मे को बदल देंगे, वहाँ उसकी मुताबिकत पैदा करेंगे। वो अगर आप इल्म सरफ पढ़ें, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, इल्म नहव पढ़ें, तो फिर इन बातों की समझ आएगी। आगे इसकी मिकदार भी उतनी ही है जितनी के वाओ मद्दा की थी, 1 अलिफ के बराबर। ये 3 आवाजें हो गई। चौथी आवाज वाओ मजहूल की मुकम्मल आवाज है। जैसे उर्दू में हमारे लफ्ज़ है जीतो या हारो, तो, रो, बो। अच्छा, अब इसको अगर जोड़ में लाए ना, हा अलिफ हा, रा वाओ रो, रा वाओ रो, रो। अब इसके ऊपर अगर हम पेश पढ़ें तो रू हो जाएगा, अगर जबर पढ़ें तो राऊ हो जाएगा। तो ना तो जबर है ना पेश है इसके ऊपर, तो इन दोनों की ये दरमियानी आवाज है। रा और रू की दरमियानी आवाज का नाम है रो। तो चूंकि इसका माकबल, इसका बिफोर हरकत नामालूम है, रो रा के ऊपर जो हरकत है वो नामालूम है, ना वो जबर है ना वो पेश है। अगर पेश होती तो वो बारीक हो जाती, रू हो जाती, और अगर जबर होती तो राऊ हो जाती, लीन हो जाती। दोनों नहीं है, इनका दरमियान है। और चूंकि इस हरकत नामालूम है, और जो नामालूम हो, गैर मारूफ हो, वो मजहूल होती है। और कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, लिहाजा इसमें
मजहूल आवाज़ भी जिसमें शक होता है वो नहीं चलेगी। लिहाजा ये नंबर 4 की जो आवाज़ है कुरान करीम में, इसको वाव मजहूल कहते हैं, और ये हम नहीं पढ़ेंगे, वो आगे जाकर मैं भी आपको इसकी तशरीह भी बताता हूँ मज़ीद। तो आगे चलिए, नंबर 5, याए मद्दा की मुकम्मल आवाज़। जिस तरह अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है, या से पहले जेर हो तो या मद्दा है। जैसे फील, फील या तबलील, अब फा जेर या फी, फा या जेर, फी लाम मौकूफ, फील, या से पहले जेर है, तो ये भी बारीक आवाज है, याए मद्दा, याए मारूफ है ये। इसकी मिसाल है फी, फी माहुम, इसी तरह कील लहुम, और भी काफ़ी मिसालें हैं। इसकी लंबाई भी एक अलिफ के बराबर है। मद्दे असली भी कहेंगे, मुकम्मल आवाज़ भी कह सकते हैं, मद्दे तदी भी कह सकते हैं। नंबर 6 पे आ जाए, याए लीन है। जिस तरह वाओ लीन से पहले पेश थी तो वो मद्दा थी, और ज़बर थी तो वाओ लीन थी। इसी तरह याए मद्दा से पहले जेर होगी तो याए मद्दा, और अगर या से पहले, या साकिन से पहले ज़बर होगी तो याए लीन होगी। जैसे वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अलम तरा कैफा, वाओ या ज़बर वई, वाओ या ज़बर वई, ये नरम या है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, वाओ लीन, हरूफ लीन 2 हैं, हरूफ मद्दा 3 हैं, हरूफ लीन 2 हैं, हरूफ मद्दा अलिफ, वाओ, या, साकिन। पहले वाली हरकत इनके मुताबिक, यानी अलिफ के मुताबिक ज़बर, वाओ के मुताबिक पेश, या के मुताबिक जेर, और वाओ लीन 2 हैं, वाओ और या साकिन मा कबल इनका मफ्तू हो, वाओ से पहले भी ज़बर हो, या से पहले भी ज़बर हो। अब ये याए लीन की आवाज़ भी, इसकी मिकदार भी एक अलिफ के बराबर है। ये 6 आवाज़ें हो गई। अब 7वीं आवाज़ आ गई, याए मजहूल। याए मजहूल की मुकम्मल आवाज़, जैसे कमरे, दरवाजे या मेरे, तेरे, ये आवाज़ भी आ और ई का दरमियान है, और ये भी मजहूल है। कुरान करीम में ये इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए आपने देखा है हम जब नूरानी कायदा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो अलिफ के बाद हम बे नहीं बोलते, क्योंकि बे बा और बी का दरमियान है। ना ये खालिस बा है, ना ये खालिस बी है, ये बे है, और इसमें शक है। कुरान कहता है ला रईब फी, इसमें शक नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बे को हम बा पढ़ते हैं, फे को ता पढ़ते हैं, फे को था पढ़ते हैं। जीम को जे क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए कि जीम जे नहीं था। अगर जीम जे होता तो हम उसको जा कर देते। जीम मारूफ है, जीम या मीम। हे को हा, खे को खा, दाल दाल, जाल जार रहेगी, रे को रा, यानी जहां पे आवाज मजहूल है हम उसको मारूफ करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने दोबारा आज ये इसको दोहराया है। आप इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं कि हरूफ मद्दा 3 हैं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं मद्दात। मद किसे कहते हैं? मद कहते हैं दराजी चाहना, लंबा करना, और लंबा करने की सलाहियत 29 हरूफ जो हैं अलिफ से लेकर या तक, उनमें से जो 26 हरूफ हैं उनके अंदर खासियत नहीं है लंबा या छोटा होने की, बल्कि इससे आगे चलें तो उनके अंदर हरकत भी वो उनके अंदर बोलने की भी सलाहियत नहीं है। हरूफ हिजा कब बोलते हैं? जब उनके ऊपर इन्हीं 3 हरूफ से जो आवाज बनी है, इन्हीं 3 हरूफ की आवाज लेकर उन हरूफ के ऊपर लाएंगे तो वो हरूफ बोलेंगे। अच्छा, आवाज कैसे लेंगे हम इन 3 हरूफ से? देखें, अलिफ मद्दा को अगर हाफ कर दें तो वो फिर जबर बनेगी, इसकी आधी आवाज। अलिफ मद्दा की आधी आवाज को हरूफ हिजाब पर लाएं तो बोलेगा।
वाव मद्दा की आधी आवाज को हरूफ हिजा पर लाएंगे तो वो बोल लेगा, या मद्दा को आधी आवाज को हरूफ हिजा पर लाएंगे तो वो बोल लेगा। और वो अलिफ मद्दा की आधी आवाज का नाम है जबर, वाव मद्दा की आधी आवाज का नाम है पेश, याए मद्दा की आधी आवाज का नाम है जेर। मतलब यह है कि जबर जेर पेश, जबर बनती है अलिफ से, पेश बनती है वाव से, जेर बनती है या से। तो हरूफ मद्दा ही महवर हैं आवाज को घटाने का, बढ़ाने का और हरूफ को बुलाने का, हरूफ को हरकत में लाने का। जिस तरह ये गाड़ी के आगे अगर इंजन ना हो तो गाड़ी हरकत नहीं कर सकती, इसी तरह अगर आयत के शुरू में या लफ्ज के ऊपर हरूफ के ऊपर हरकत ना हो, इन्हीं तीन हरूफ से जो हरकतें बनती हैं तो वो ना हो तो हरफ नहीं बोलेगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि हरूफ मद्दा अलिफ वाव या, इन तीनों से जो हरकत बनती हैं वो हैं जबर जेर पेश। तो अलिफ वाव या की मिकदार तो हो गई एक अलिफ, और जबर जेर पेश की आवाज हो गई आधा अलिफ, हाफ अलिफ। मैं अभी आपको इस तरफ ले जा रहा हूं कि आवाज की कम से कम छोटी से छोटी मिकदार कितनी है और बड़ी से बड़ी मिकदार कितनी है। अलिफ की मिकदार मुकम्मल आवाज मद्दे असली मद्दे तबी, जबर की आवाज उसको हाफ कर लें, अलिफ को हाफ कर लें जबर, वाव को हाफ कर लें पेश, या को हाफ कर लें जेर है। यानी अगर अलिफ की आवाज के दो टुकड़े किए जाएं तो हरकत बनेगी, और अगर अलिफ की आवाज के चार टुकड़े किए जाएं, यानी आधा जबर या आधा जेर या आधा पेश, तो ये बनेगी जज्म की आवाज। और अगर इसके जज्म के भी आधा किया जाए, दो टुकड़े किए जाएं, तो बनेगी शद की आवाज। यानी अगर 1/2 माइनस करें तो हरकत होंगी, 1/4 माइनस करें तो जज्म होगी, और 1/8 माइनस करें तो ये शद की आवाज होगी। मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा ये नक्शा बनाकर कल मैं इसको आपके सामने अवेजा कर दूं। तो अभी आप ये ध्यान में रखें कि सबसे छोटी आवाज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो शद की आवाज है, सबसे छोटी, और उससे डबल आवाज जो है वो जज्म की आवाज है, उससे डबल आवाज जो है वो हरकत जबर जेर पेश की आवाज है, और उससे डबल जो आवाज है वो अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा की आवाज है। ये 1 और 8 का तनासब बनता है। यानी अगर हम अलिफ के 8 टुकड़े करें, एक अलिफ आवाज के 8 टुकड़े करें, तो सबसे छोटी आवाज जो है 8वां हिस्सा बनेगा शद का, चौथा हिस्सा बनेगा जज्म का, और दूसरा हिस्सा बनेगा हरकत का, और मुकम्मल आवाज अलिफ वाव या की होगी। और अगर इनको प्लस इनको जमा कर दें, इसके अंदर 2 अलिफ और शामिल कर लें तो ये छोटी मद बनेगी, और अगर इसके अंदर 3 से 4 अलिफ और शामिल कर लें तो ये 4 से 5 अलिफ बड़ी मद की आवाज होगी। तो यूं समझ लीजिए कि हरूफ मद्दा अलिफ वाव या ये हरूफ मद्दा हैं, बाकी किसी हरफ में लंबा होने की या छोटे खासियत नहीं है। जिस तरह देखें मिसाल के तौर पर लकड़ी के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप उसको खींचकर लंबा कर लें, लोहे के अंदर नहीं हो सकता, मट्टी के अंदर ये खासियत नहीं है, लेकिन रबड़ के अंदर ये खासियत है। रबड़ आप अगर 6 इंच है तो आज खींच कर आप उसको 12 इंच भी कर सकते हैं। इसी तरह अलिफ के अंदर ये मिकदार है कि उसकी अपनी आवाज जो है वो तो 1 अलिफ के बराबर है, लेकिन वक्त जरूरत आपको उसको आधा करके हरकत भी बना सकते हैं, उसको आवाज को चौथाई करके जज्म की मिकदार भी बना सकते हैं, उस आवाज को 8 बनाकर आप शद की आवाज पैदा कर सकते हैं।
शद की आवाज पैदा कर सकते हैं, और उसके अंदर जमा करके एक अलिफ में 2 अलिफ जमा करें तो ये छोटी मद बनेगी, और उसके अंदर 2 से 3 अलिफ और जमा करें, 3 से 4 अलिफ, तो वो बड़ी मद बनेगी। तो इस तरह हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाओ या। और जब भी हम कुरान करीम पढ़ते हैं, अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, मसलन कि मद्दे असली की मिकदार को लंबा ना करें, हरकत की आवाज़ को लंबा ना करें। मसलन हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं मदारस में या स्कूलों में, तो गलती कहाँ से शुरू होती है कि कायदा, जब हम मुफरदात के बाद, मुरक्कबात के बाद हरकात पे आते हैं, तो हम कहते हैं अलिफ ज़बर, बा ज़बर। तो अब बा, पहले बा है, कंप्लीट साउंड, मुकम्मल आवाज बा। जैसे मेरा कद है वो 6.25 फुट, तो अगर मैं चेयर पे बैठ जाऊं तो वो अब कम हो जाएगा। इसी तरह बा, जब वो जबर की चेयर पे बैठेगी, बा जबर, अब बा जबर बा नहीं कहना, बा जबर बा, उसकी आधा करना है। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा। गलती यहां से होती है, गलती यहां से शुरू होती है। खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रा जबर रा, जा जबर जा, सीन जबर सा। अच्छा, अब जब हम मुरक्कबात आते हैं मुतहर्रक, मसलन इबीली, अलिफ जेर ई, बा जेर बी, लाम जेर ली, इबीली। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वो जो 7 आवाजें हैं, जो 7 आवाजें हैं, उनमें से मजहूल आवाज भी ना आए। मसलन अलिफ जेर ए नहीं होगा, बा जेर बे नहीं होगा, लाम जेर ले नहीं, एबेली नहीं होगा, या बोतोसो नहीं होगा। बाप, एक तो ये ध्यान रखना है कि आवाज मारूफ हो, वाओ मद्दा की आधी आवाज हो, बा पेश बू, बा वाओ मजहूल की ना हो, या मजहूल की ना हो। गलती यहां से होती है, जब हम कायदे में बा पेश बो पढ़ाएंगे या बा पेश बो पढ़ाएंगे, तो जाहिर है फिर जब वो सूरह फातिहा में आएंगे तो अलहम्दो पढ़ेंगे, अलहम्दु नहीं पढ़ेंगे। दाल पेश दू, अलहम्दु लिल्लाही। तो अगर हम कायदे में इन 2 बातों के ऊपर तवज्जो दे लें, एक तो वो जो 7 आवाजें हैं उनमें जो 2 मजहूल आवाजें हैं उनको, उनके ऊपर गौर कर लें, तदब्बर कर लें, और मारूफ आवाजें पढ़ें, और हरकत की आवाज को अलिफ के ना, अलिफ ना बनाएं, तो अलिफ की आवाज को हरकत ना बनाएं, तो फिर ये गलतियां, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इय्याका नअबुदु, ये फिर गलतियां पैदा नहीं होंगी। तो अब आप दोस्तों के ज़हन में ये बात भी आ गई होगी कि हम बे को बा क्यों पढ़ाते हैं, ते को ता क्यों पढ़ाते हैं, ए को सा क्यों पढ़ाते हैं। अब ये तो मैंने यहाँ पढ़ रहे थे हम मद का बयान, कि मद किसे कहते हैं। ये है मद, मद का माना है लंबा करना। एक तो इसकी तभी आवाज है लंबाई, वो है एक अलिफ, लेकिन कभी ये अपनी मद से ज्यादा भी हो जाती है। वो कब होती है कि जब इसके बाद कुछ सबब पैदा हो। अगर सबब नहीं होगा, मसलन देखें मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, माली, मालिक, हमने इसको लंबा नहीं किया, इसलिए लंबा नहीं किया कि कोई सबब नहीं है। और इसके सबब 2 हैं, या इसके बाद हमजा बशक्ल हमजा या हमजा बशक्ल अलिफ आ जाए, तो इसके बाद हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या के बाद जज़म या शद, सुकून या तशदीद पैदा हो जाए, इख्तियारी हो या इस्तरारी हो, तभी हो या असली हो या आर्जी हो, किसी तरह भी हो। तो अगर वो सुकून पैदा हो जाए या हमजा पैदा हो जाए, तशदीद पैदा हो जाए, तो फिर इस एक अलिफ की मिकदार से हम बढ़ाकर इसको 3 गुना भी कर सकेंगे,
4 से 5 गुना भी कर सकेंगे। उस वक्त पर मद्दे असली नहीं रहेगी, वो मद्दे फरई रहेगी। आगे जाकर हम आपको इसका बताएंगे मद्दे फरई की, मद्दे फरई की मिसाल आगे जाके इसकी मुकम्मल तशरीह बताएंगे। अब चलिए, मद के बाद है हरफ इदगाम। इदगाम कहते हैं दो कारी हरफों को एक करके पढ़ना। साहब अपना माइक कर लें, शोर आ अपना रहा है माइक पीछे भी से। बंद कर दें, तमाम दोस्त अपना माइक बंद कर दें, सब दोस्त, मैं जिसको अर्ज करूंगा वो अपना माइक खोल ले। इदगाम कहते हैं दो हरफों को एक कर देना। ये दो हरफ एक कब होते हैं, इसकी भी कुछ शराइत है, और वो आगे जाकर इसकी तारीफ जब आएगी तो आपको बताया जाएगा कि इदगाम कहते हैं शिकल को, दो हरफ जब एक जगह पर हों तो वो या तो एक जो है वो एक जैसे हों तो फिर इदगाम होता है। ये होता क्यों है इदगाम, मैं आपको ये भी अच्छा भी बताऊंगा। शोर आ रहा है अंदर, समझ नहीं आ रही। ये कारी आदल साहब का माइक बहुत ऑन है, पीछे से मेंढक की आवाजें आ रही हैं। तमाम दोस्त अपना माइक बंद कर दें। सबका बंद है, सिर्फ कारी आदल साहब का कर सब खुला हुआ है, सबका बंद है बाकी। आदिल साहब का, हाँ जी, कारी आदल डस्के वाले। हाँ जी, हाँ और आदिल साहब अपना माइक बंद करें। अच्छा, मैं ये हो गया हो गया हो गया। कि मद कब बताऊंगा कि मद कब होगी, इदगाम कब होगा और क्यों होगा। एक है कि होता क्यों है, किताबों में ये तो लिखा है कि कब होगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि क्यों होगा। मद क्यों होती है, इदगाम क्यों होती है, इख्फा क्यों होता है, इजहार क्यों किया जाता है, इकलाब क्यों किया जाता है, अबदाल क्यों किया जाता है, ये भी इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। इदगाम कब होता है और क्यों होता है ये बाद में बताएंगे कब होता है, लेकिन ये बताएंगे कि दो हरफ एक जैसे आ जाए तो दोनों को पढ़ना जरा दुश्वार होता है। आप उर्दू में देख लें, उर्दू में लफ्ज है खुददार, दो दाल जमा हो गई, तो अगर आप इनका इदगाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, खुददार, तो शिकल हो गया ना, पढ़ने में भी शिकल है, सुनने में भी बोझ महसूस होता है। खुददार और खुददार बोझ महसूस है। आप पहले, पे के बाद पे आ गई उर्दू में, आप पहले। इसी तरह पंजाबी च अत तेरी। इसी तरह ना ये अरबी में भी जब दो हरफ एक जैसे आ जाए तो उनको मिलाना पड़ता है। शर्त ये होगी कि पहला साकिन हो। तो इसी तरह इदगाम, अच्छा, दो हरफ एक जैसे आ जाए तो इदगाम, और बाद ऐसा होता है कि दो हरफ में से पहला हरफ ज़ईफ हो और दूसरा कवी हो। पहला हरफ ज़ईफ हो, एक तो वजह ये होती है कि दो हरफ एक जैसे हों, एक वजह ये भी हो सकती है कि पहला हरफ ज़ईफ हो और दूसरा कवी हो, तो फिर ज़ईफ जो है वो उसका बाकी रहना मुश्किल हो जाता है। ज़ईफ कब होता है, जब पहला हरफ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, पहला हरफ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो फिर क्या होता है कि साकिन हरफ जो है वो ज़ईफ हो जाता है, तो उसका पढ़ना जो है मुश्किल भी होता है और समझना फिर दुश्वार भी होता है। तो अब क्या है कि पहले हरफ को दूसरे हरफ में मिला देते हैं। इसी तरह एक मखरज के दो हरूफ जमा हो जाएं या एक आवाज जैसे दो हरूफ जमा हो जाएं तो उनकी आवाज़ों को भी ज़रा उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया है, कौन है जो कुरान करीम को सीखे। तो इदगाम दो हरफों को एक करके पढ़ने का नाम है, और याद रखिए दो हरफों को जब एक किया जाता है तो ये फिर मुशद्दद हो जाते हैं, इनके ऊपर शद आ जाती है। तो आज हम मद और इदगाम, इस्तिलाहात में मद और इदगाम की हमने तशरीह आपके सामने की है। आप ज़रा एक दफ़ा फिर समझ लें कि जो मैंने आपको 7 आवाज़ें बताई हैं उनमें एक आवाज़ अलिफ की है, और अलिफ की आवाज़ हमेशा अलिफ मद्दा की आवाज़ होती है और कोई आवाज़ नहीं है। वाव की 3 आवाज़ें हैं,
एक आवाज़ का नाम है वाव मद्दा, वाव साकिन माकबल मजमूम, वाव लीन, वाव साकिन माकबल मफ्तू, वाव मजहूल, वाव साकिन माकबल नामालूम हरकत, और ये मजहूल नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह ये पांचवी आवाज़ है याए मद्दा, या साकिन माकबल मकसूर। छठी आवाज़ है याए लीन, या साकिन माकबल मफ्तू। और सातवीं आवाज़ है याए मजहूल, या साकिन से पहले हरकत ना मालूम। तो हज़रात ग्रामी ये तो हो गई आपने जो हरकत हैं या आवाज़ें हैं, इनमें मजहूल आवाज़ों की अच्छी तरह पहचान कर लें। उसके बाद मैंने आज आपको बताया था लहने जली की 4 किस्म की गलतियां लहने जली में शुमार होती हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ बदल देना, किसी हरफ को ज़ायद कर देना, किसी हरफ को कम कर देना, हरकत व सकनात में तब्दीली कर देना। उसके बाद बताया था वक्फ, लहने खफ़ी हरफों के हसीन होने के जो क़वाइद मुकर्रर हैं, मसलन उनमें इख्फा करना, इजहार करना, मद्दात या मद्दात की मिक़दार वगैरह या तफ़ख़ीम की मिक़दार वगैरह, तो ये लहने खफ़ी के अंदर शुमार होंगी। इसकी तफसील आगे जाकर आपको मज़ीद बताई जाएगी। वक्फ की तारीफ़ आपको ये बताई थी कि वक्फ के अंदर 2 बातों का जानना ज़रूरी होता है। वक्फ कहाँ करना है और कैसे करना है। कहाँ करना है? कलमा अखीर गैर मौसूल पर। कैसे करना है? सांस और आवाज़ को तोड़कर मुतहर्रिक को साकिन करके 2 ज़बर को अलिफ और गोल ता को साकिन हा से बदलकर हम वक्फ करेंगे। इसके बाद आपको बताया था सक्ता में और वक्फ में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि सक्ता में सांस नहीं टूटता, आवाज़ में सांस टूट जाता है। बाकी सारे कवानीन एक जैसे हैं। रवायत हफ्स में मुकामात सक्ता 4 हैं, वो आपको आगे जाकर बताए जाएंगे। आगे है तफ़ख़ीम। 29 हरूफ में से 7 हरूफ जो हैं वो पुर पड़े जाते हैं, उनमें तफ़ख़ीम होती है, और बाकी जो 22 हरूफ हैं उनके अंदर तरकीक हैं, बल्कि 21 क्योंकि हमजा भी शामिल नहीं करेंगे। तरकीक के अंदर बाकी तफ़ख़ीम के अलावा बाकी सारे हरूफ में तरकीक पाई जाएगी, और उनको जो हरूफ तफ़ख़ीम हैं उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। हरूफ मुस्तालिया का माना है खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़। तो किताब का सबक अब तमाम होता है। आइए अब हम सब मिलकर तो मश्क करते हैं। एक बात ज़हन में रखिए, जो दोस्त सेपरेट मश्क करना चाहते हैं, अलहदा नगमात लहजात सीखना चाहते हैं, वो मुझसे अलहदा टाइम ले सकते हैं। उसमें हर बंदा जो है वो 10 से 15 मिनट मैं उसको दे सकता हूँ, और मेरे साथ वो सेटिंग कर लें। 10 से 15 मिनट उनके लिए अलहदा मश्क, वो कोई टाइम भी हो सकता है, यानी शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो आप मेरे साथ ये टाइम निकाल कर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ का टाइम है ना। इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें आप मुझसे टाइम लेकर मेरे साथ आप मश्क कर सकते हैं, क्योंकि बग़ैर मश्क के बात नहीं बनती। और याद रखें, जो लोग मुब्तदी हैं, जिन लोगों ने हिफ्ज़ नहीं किया हुआ या किसी कारी से नाज़रा नहीं पढ़ा हुआ और वो हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए नूरानी कायदा पढ़ना ज़रूरी है। वो मेरे साथ सेपरेट नूरानी कायदा भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ मुझे कॉल करके टाइम लेकर वो मेरे साथ वो नूरानी कायदा भी इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो आइए हम आज सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, सूरतुन नास भी पढ़ेंगे और सूरह फलक भी पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ूंगा तो सूरतुल फातिहा में मेरे साथ अगर हाफिज अब्दुल मन्नान हैं तो वो पढ़ेंगे। सूरतुन नास मेरे साथ अगर कारी उस्मान साहब हैं वो पढ़ लेंगे, अगर कारी उस्मान साहब नहीं हैं तो फिर हाफिज नकीब साहब पढ़ लें। और सूरह फलक जो है वो कारी क्या नाम है, कारी कामरान साहब पढ़ लें। और उसके बाद जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी मैं अपने साथ इंशाअल्लाह शामिल करूंगा। तो आइए बाकी तमाम दोस्त अपने माइक बंद रखें। सूरह फातिहा में हाफिज अब्दुल मन्नान
موجود ہیں تو اپنا مائک کھول لیں. باقی سارے دوست اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں اور اپنا ریکارڈ بھی کریں, بعد میں سنیں اور موازنہ کریں کہ ہم جیسا پڑھا رہے ہیں کیا وہ بھی ایسا ہی پڑھ رہے ہیں یا اس کے اندر کچھ فرق ہے, تو اپنی مشق کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جی عبد المنان پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مطلب دعا کے اوپر مد اور لمبی کریں. 4 سے 5 الف ہے کم سے کم 4 الف, زیادہ سے زیادہ 5 الف. پھر پڑھیے. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بریڈ فورڈ سے حافظ ابو بکر صاحب پڑھیں سورہ فاتحہ. سنائیں مجھے جس طرح میں نے پڑھی ہے, اب آپ مجھے سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حافظ نقیب صاحب سنائیں سیالکوٹ سے، حافظ نقیب صاحب. کرسا وہ نہیں ہے میرے خیال سے، آج نہیں آئے. اچھا اچھا چلو. علی چھوٹا بیٹا ہے علی، علی پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، زور سے پڑھیں. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آپ کا طا صحیح نہیں نکلا، پھر پڑھیے، زور سے بھی پڑھیے اور طا کو صحیح کیجیے. اہدنا الصراط طا پڑھیے پھر. اهدنا الصراط المستقيم. اب ہا کو آپ نے ہا سے بدل دیا ہے، ہا کو صحیح پڑھیے، پھر پڑھیے اہدی. یہ میں غلطی اس لیے نکال رہا ہوں کہ جو دوست باقی ہیں وہ بھی توجہ کریں اور اپنے اوپر یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی تو یہ غلطی نہیں ہے. جی پڑھیے بیٹا. جی جی. اهدنا الصراط المستقيم. وہ غلطی ابھی تک موجود ہے، اہ نہیں ہے. اہ یہ سینہ جو یہ چیسٹ ہے، اس کی یہاں سے یہ آواز نکلے گا. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. اہدی اہ نہیں. پھر پڑھیے. اهدنا الصراط. یہ خا ہو گیا. اهدنا الصراط المستقيم. اب طا نہیں صحیح نکلا، پھر پڑھیے. دونوں غلطیاں صحیح. اهدنا الصراط المستقيم. جی آگے چلیے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ دو سانس میں پڑھیے اور مد بھی صحیح کیجیے والا بال کے اوپر. اور صراط الذین کا طا آپ کا کمزور نکلا ہے. صراط الذین. اچھا اس کو آپ صحیح پڑھیے، پھر پڑھیے ذرا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حافظ عادل پڑھیں اب سورہ فاتحہ. حافظ عادل. وہ نہیں ہے کرسا شاید.
اچھا حافظ ذیشان صاحب ابو ظبی سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الشیطان الرجیم. کامران پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد آپ مائک بند کر لیں. وہ پڑھیں گے. قاری گلزار صاحب ہیں تو وہ بھی ریڈی رہیں، اور سارے دوستوں کو حلق میں جا کر سنوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کامران پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. جی پڑھیے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اب یہاں دیکھیے کامران صاحب، قل جب آپ نے کہا ہے نا تو اس کے بعد حمزے کو صاف کیجیے. حمزہ کے اوپر زبر ہے. قل اعوذ، قل اعوذ. لام میں آواز مکمل بند بھی نہ ہو اور جاری بھی نہ رہے. پڑھیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ایک تو اپنے منہ کو ماؤتھ کے اوپر رکھیں مائک کے قریب، اور پھر ذرا سنیں. لام میں آپ نے آواز کو مکمل جاری رکھا ہے. کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں آواز کبھی آدھی بند ہوتی ہے آدھی جاری ہوتی ہے. سنیں ذرا غور سے، میں دونوں طرح پڑھتا ہوں. قل اعو، یہ نہیں ہے. قل اعو، قل اعو. جی قل اعوذ برب الناس ملک الناس. قل اعوذ. آواز آپ کی کم ہو رہی ہے، مائک کے قریب رکھیں منہ. آگے چلیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. آگے چلیے. من إله الناس من شر الوسواس الخناس. مائک قریب کیجیے، آواز نہیں آ رہی نا. إله الناس من شر الوسواس
ماشاء اللہ. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ. جی قاری گلزار صاحب اسلام آباد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے تجوید و قرات کے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا